नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना ग्रुप के चैनल हेड ब्रजमोहन रघुवंशी ने 2 दिवसीय रूस के कजान में इंडिया और रसिया के बिजनेस को लेकर कजान एयरपोर्ट पर लोगों से बातचीत की और इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमारी ये रूस की यात्रा खत्म हो रही है। जी हां, हम कजान एयरपोर्ट पे इस समय हैं और आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो इस पूरे 2 दिन की यात्रा में सिर्फ काम के साथ हम लोगों ने कजान को महसूस किया। हमने उसे ना कि सिर्फ देखा, उसे महसूस किया। यहाँ के रूसी खाने को खा करके, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ के कल्चर को, बहुत कुछ हमने देखा, समझा। और जो लोग आज हमारे साथ थे, और जब ये हमारा आखिरी पड़ाव है, जब हम यहाँ से सीधे मॉस्को जा रहे हैं और मॉस्को के बाद हम सीधे इंडिया जाएंगे, तो आज हम बातचीत करें उन लोगों से जो हमारे साथ शुरू से थे। सो वी विल स्टार्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश बिकॉज सो दैट माय गेस्ट कुड अंडरस्टैंड and they can also that what we are talking about actually. Let me start with my the host of this whole trip, Mr. Ivan G. Basically, we are using G because in India we respect people by putting G and Shri over there. So it is just like it. Ivan G, how are you feeling? And because for 3 days we were there with you, I hope we have not bothered you. And if you have bothered, please tell us very honestly. I'm not bothered at all. It was a great honor to host you here. For everyone who came here, who endured through long flights. Somebody flew from Kerala, by the way, 36 hours, that's a lot. We had a great time. We had a lot of business meetings, and we had a lot of cultural impressions here in Kazan. Our hosts actually are Tat Media. It's the partner of our company, so they invited us to this city, and we enjoyed it a lot. You know, I would like to ask about the summit actually. We too have the experiences. We are telling our viewers, the Indian viewers especially, you know, if I ask you basically, because you were the host for the Indian delegation over here, especially the journalists. So what is the motive behind this summit actually? For the viewers of India, I would just like to ask this question to you. The main idea is to strengthen business and cultural ties between our nations, and I think we succeeded greatly in that matter. And why have you chosen, it was an Indian-Russia business forum. Why India? Why Tatarstan, the Kazan takes only India for it? Why do you choose India for it actually? You know, the TIME Forum stands for Tatarstan Initiative Mutual Efficiency. So it was the initiative of Tatarstan to be the host for such a great event. It was chosen, you mean like choosing India? Yeah. Because we're long-term partners, we're friends, we're more than just partners. So it's just absolutely obvious to me and to everybody else. Thank you for talking to us. We have another guest, Sasha. She has, let me tell you and introduce about her. She has been to India also, and so she knows the cultures and traditions as well as the business prospects with India. So we'll definitely ask her about it. Sasha, first of all, thank you so much by the Indian delegation, the Indian journalists, especially by me. It was such a hectic day, every day from 6 o'clock in the morning till 11 o'clock in the night. But you were there as fresh, as energetic. So how do you do it actually? My Indian viewers definitely want to listen to you and see you. Thank you for coming. First of all, it was a great pleasure to host you here in Kazan. We hope you liked it as well. And you are also very energetic every day from the morning till the evening. I think the major reason for that is that we do the right thing. We promote our cooperation between India and Russia, and that's something that gives energy because it has a meaning. No, I was talking about the culture and the traditions actually. The clothing, the way you all put up yourself, especially you're a woman, so definitely I see the humbleness, the kindness, the personalities which Indian women do have. I'm seeing the same in Russia. So how is it so basically, and especially are we copying you or you're copying to us? I think that even though we have different cultures, there is a lot in common between Russia and India, between our people, and it's not copying, it's just that we have so much in common that this unites us a lot. Thank you so much for talking to us. We have another, the host actually to the Indian delegation since Wednesday when we arrived over here, sorry, Tuesday when we arrived over here, and today's Friday. And she's with us. She has the same enthusiasm and same humbleness. So definitely thank you so much first of all for being so humble, so kind with us. What would you like to speak about the Indian journalists and delegation actually?
Thank you so much. First of all, thank you for this question, and it's a great honor for me, and it's a great pleasure for me to work with you and to get acquainted with you personally, Mr. Singh, with our delegates from India. So actually I'm a Kazaner, so my hometown is Kazan, and it was even more enjoyable for me to host you here in my hometown in Tatarstan, and thanks to this forum, the ties between Russia and India are getting even stronger. Yes, and thank you so much for this opportunity. And yeah, we had such a great time together, so it was a great opportunity for me to get acquainted with Indian culture. And so I have never been to India before, and now we're planning our trip. So thank you so much for this. Thank you very much. And then we have the other guest, देवेश जी. जी हाँ, देवेश जी भारतीय हैं और रूस में काफी समय से ये काम कर रहे हैं. और इस पूरे डेलीगेशन में मैं बोलूं तो इंडियन जर्नलिस्ट का रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिया गया था, और आखिरकार उन्होंने हिंदुस्तानी पत्रकारों को क्यों चुना इस खास आयोजन के लिए. हम इनसे बातचीत करेंगे. देवेश जी, आपका बहुत स्वागत है, और आपने हम सबको मौका दिया खास तौर से कि जो आज हम कजान आ पा रहे हैं, और हमने इस पूरी संस्कृति को, जो ट्रेडिशन को, और खास तौर से जो एक बिजनेस फोरम के तहत हम लोग जो आपसी तालमेल करने जा रहे हैं, उसमें आप जैसे लोगों की भूमिका बहुत है. खुद आप एक बिजनेसमैन हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद एक तो आप सबको कि आप आए भारत से यहाँ पे, बट सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं वो टीवी ब्रिक्स हैं और तात मीडिया है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया. मैं तो एक जस्ट माध्यम था, मैंने इनको कुछ लोगों से कनेक्ट कराया, इन्होंने आपको बुलाया. और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम इंडिया में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, वो आपने यहाँ भी फील किया कि अतिथि जब से आप आए हैं उस समय से जिस तरह से इन्होंने स्वागत किया, आपका सब ध्यान रखा, वो ट्रू फ्रेंडशिप का रियल एग्जाम्पल है. जैसा सासा ने बताया, जेनिया ने बताया कि हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन बहुत कुछ सेम है. अगर संस्कृत हमारा लैंग्वेज होता तो हमारा लैंग्वेज भी एक होता. आप देखेंगे संस्कृत में हम बोलते हैं भ्राता, यहाँ भी ब्रात बोलते हैं. आप मुंबई चले जाइए चीनी खरीदने के लिए, साखर बोलेंगे, यहाँ भी साखर बोलते हैं. तो बहुत कुछ सिमिलर है हमारा, और हमें अच्छा लगता है कि हम जब 78 ईयर का जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है हमारा, उस दोस्ती को ये इस डिफिकल्ट टाइम में, क्योंकि रशिया आप अगर देखेंगे, चाहे 1971 का वार हो, इंडिया पाकिस्तान का, बांग्लादेश के मैटर पे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का टाइम हो, हमेशा हमारे साथ रहता है. और ये हमारी जिम्मेदारी है बीइंग एन इंडियन कि हम रशिया को सपोर्ट करें और रशिया के साथ खड़े होके इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में भी इनके साथ हो, बिजनेस करे और आगे बढ़ाए अपने कल्चर को, अपने दोस्ती को. तो इसके लिए हम आप सबका आभारी हैं कि आप सब निमंत्रण स्वीकार किए और आए यहाँ पे. बहुत बहुत धन्यवाद. हमसे बात धन्यवाद. तो आप देख सकते हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें कजान में हमें बुलाया, हमें अतिथित्व का इन्होंने अवसर इन्होंने हमें दिया. और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, कजान अपने आप में आने वाले विश्व में सबसे बड़ा एक शहर होगा, जो अपने आप में विश्व को एक अलग नक्शे पर इसकी पहचान की जाएगी. और क्यों नहीं, उसमें ऐसे लोग हैं, और हम सब भारतीय पत्रकारों की एक भूमिका इसमें अहम होने जा रही है, जो लगातार न कि सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में इस बात को पहुंचाएं कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आप संस्कृति के साथ, आपको देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ एक ऐसा देश जाना है, तो रशिया निश्चित रूप से वो है. और मैं खास तौर से अपने सीनियर पर्सन, कैमरा पर्सन जो हमारे को हमें मदद कर रहे हैं, हु इज असिस्टिंग मी फॉर डूइंग कैमरा, थैंक यू सो मच फॉर बेसिकली फॉर माय रिक्वेस्ट एक्चुअली. एंड आई जस्ट वुड लाइक टू से दैट वी ऑल शुड हैव पीपल लाइक यू इन इंडिया ऑल्सो. With my colleagues of India from Kazan, this is Brijmohan Singh Raghuvanshi for Sadhana Television. उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है. बनारस, जो है खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर से होते हुए फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु रूट पर चलने वाली इन ट्रेनों का उद्घाटन पीएम मोदी ने खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ उत्सव का माहौल बना दिया. मजबूत नींव रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले भाई अश्विनी वैष्णव जी टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े.
एर्नाकुलम से केरला के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, केंद्र में मेरे साथी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, केरला के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, फिरोजपुर से जुड़े केंद्र में मेरे साथी, पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, लखनऊ से जुड़े यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित काशी के मेरे परिवारजन, बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज,
बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार। रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल। southuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। और भाइयों, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हो गए हैं और पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद अभी से सुनाई दे रही है। बहन और भाइयों, बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा, यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। और इसी के लिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज बिहार में वो सब कुछ है जो बिहार की
समृद्ध और विकसित बिहार बनाने में सहायक हो सकती है। रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की सुविधा है। और बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है। आप याद करिए, एनआईटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है और बिहार के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है। और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है फस्त और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। बहनों और भाइयों, मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन के लोगों के वक्तव्य इस बात के परिणाम हैं कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो बिहार की जनता जनार्दन का फैसला आएगा और वह फैसला होगा कि बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। एनडीए सरकार बिहार के लिए इसलिए भी आवश्यक है, जिन लोगों ने देश के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, ऐसे कांग्रेस, आरजेडी, एमाले और अन्य जितने भी इनके सहयोगी हैं, बहनों और भाइयों, ये सभी अपने अपने क्षेत्र के कुख्यात सरगना हैं। इनके द्वारा अपराध को न केवल अंजाम दिया जाता है, बल्कि अपराध के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए, अराजकता को पैदा करने के लिए और जिस जंगल राज ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उस जंगल राज के सभी अपराधी हैं। इस जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार के नौजवानों ने 2005 में एनडीए के नेतृत्व पर विश्वास किया था। परिणाम आया, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनती है और 2005 का बिहार एक ऐसा बिहार, बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार को आरजेडी और ये माओवादी नक्सलवादियों के गठबंधन ने उस बिहार को साक्षरता में देश के अंदर पीछे धकेल दिया। बिहार के नौजवानों को पलायन करने
करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी प्रतिभा और मेधा के लिए जगविख्यात बिहार का नौजवान पहचान के लिए मोहताज हुआ तो उसका दोषी कांग्रेस, आरजेडी और एमआलए है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज जो भी देखने को मिल रहा है, यहां एक नए बिहार का स्वरूप है जिस पर समृद्ध और विकसित बिहार की आधारशिला टिकनी है। और उसी बिहार के लिए आप सभी का समर्थन मांगने के लिए आज हम सब एनडीए के प्रत्याशी श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है बिहार जिसका हकदार था। जो कार्य 50 वर्ष पहले होना चाहिए था, जो कार्य 30 वर्ष पहले होना चाहिए था, वह कार्य पिछले 20 वर्ष के अंदर और तेजी के साथ पिछले 11 वर्ष के अंदर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।